Hello dear students, a warm welcome to this EVS video class. I'm sure you all are doing good. You all are happy and healthy. Do take very good care of yourselves, children, so that you remain happy, you remain safe, you remain healthy. Follow all the safety precautions and keep yourself protected. This is our English EVS class, children, and we are doing the chapter the earth and the sky. Okay, the explanation part I have already completed and we have to start with the exercises now. So today, before starting the exercises, we will just do the recapitulation. एक बार बस just बिल्कुल short में revision करेंगे and then we will start with the exercises. Okay. In this lesson, we have talked about the land, different landforms and water bodies. We all know that we live on planet Earth and planet Earth is covered with land and water. Earth जो है वो land और water से covered है and Earth is surrounded by layers of air. चारों तरफ क्या है? Air की layers है. And जो land है, land is 30%, almost 30%, and 30% of 70% of earth is covered with water. तो जो भी land का part है, उस पे human beings are there, animals, different type of animals are there, different types of plants are there, all the buildings, wherever we go, जितने भी buildings हैं, जो भी countries हैं, everything is on land only. Farmers grow crops on land. Vehicles, most of the vehicles run on land except for air and water transport. All the vehicles run on land. Then land is not same everywhere. At some places it is plain. Plain land may be covered with grass. That means जहाँ पे crop वगैरह होती है. Or it may be covered with sand, जो desert होता है, रेगिस्तान. At some places it is very high landform which forms hills and mountains. Mountains are very high landform, hills are slightly lower. Hills जो होती है वो mountains से lower होती है. And then there are deep valleys also. जब landform जो बहुत high landforms are mountains and hills, and very low landforms are known as valleys. Okay. Then very high mountain peaks are almost covered with snow throughout the year, and snow में हमें different types of animals और plants मिलते हैं. Then there are so many water bodies also. Sea है, ocean है, lake है, river है, ponds है. Most of the places, the water which we consume, जो हम पानी पीने के लिए, cooking के लिए, washing clothes है, watering the plants, सारे purpose के लिए, at most of the places we get water from river. But of course, river से direct पानी हमारे घर में नहीं आता है. First it goes to water plant. वहाँ पे पूरा purification के बाद उसमें जो भी वाटर में जम्स वगैरह होते हैं, गंदगी होती है, उसको अलग करके देन क्लीन वाटर इज सप्लाइड. वाटर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो देयर एंड देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज के अंदर भी प्लांट किंगडम भी है और एनिमल किंगडम भी है. ओके. देन स्काई. स्काई में मोस्टली व्हाट डू वी सी? वी सी सन ड्यूरिंग द डे and moon and stars during the night. Otherwise there are so many things in sky but they are not visible to us. जो पूरा हमारा solar system है, that is sky only. Clouds होते हैं, जब sky में clouds दिखाई पड़ते हैं, clouds cause rain. When it is a bright and clear day, then we see blue sky and white clouds. If it is during monsoon, most of the time we see very dark clouds. जब बारिश का टाइम होता है तो sky is not so clear. एकदम ब्लू स्काई नहीं दिखता है, थोड़ा ग्रे ग्रे सा स्काई दिखता है. एंड वी सी डार्क क्लाउड्स, दे आर रेन क्लाउड्स. क्लाउड से बारिश होती है. एंड समटाइम्स आफ्टर द रेन्स व्हेन द सन कम्स आउट वी सी रेनबो इन द स्काई. जो बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो हमें बहुत बार रेनबो दिखाई पड़ता है. रेनबो कैसे बनता है? रेनबो तो स्काई में नहीं रहता है कि अपने आप निकल आया. इट इज मेड. कैसे बनता है? जब बारिश के बाद भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं, वो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं. और जब सन निकलता है, जब सन की रेज उनके ऊपर पड़ती हैं तो दे फॉर्म रेनबोज.
कैसे रेनबो बनता है? वाटर ड्रॉपलेट्स पे सन की रेस पड़ने से, वो आप और आगे सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे। साइंस में देयर आर प्रोसेस कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स पे जब सन की लाइट पड़ती है, देन द रेनबो इज मेड। रेनबो में देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो एंड दैट दे आर नोन एज विबग्योर। उसी सीक्वेंस में कलर्स होते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सीक्वेंस कलर्स का सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ओके, सो दिस lesson is complete. Now we will start with the exercises today. Okay, so turn to page number 102. Exercises. First is take the correct answer. Take the right answer for each question. 3 options are there. You have to put a tick on the right answer. A is take the right answer. Okay. First is the biggest water body is. वाटर बॉडी का मतलब है जो भी पानी वाली जगह है, जैसे लेक है, पॉन्ड है, सी है, रिवर है, ओशंस है, वेल है। दीज आर ऑल वाटर बॉडीज जहां पानी रहता है। तो द बिगेस्ट वाटर बॉडी इज, एंड द ऑप्शंस आर ए इज रिवर, बी इज lake, and C is OCEAN, ocean. Biggest means सबसे बड़ा. So out of these 3, river, lake and ocean, which is the biggest water body? सबसे बड़ी water body कौन सी है? That is ocean. Ocean को क्या कहते हैं? महासागर. एक तो सागर है, there are some seas and there are 7 oceans. महासागर. Okay? So biggest water body is sea. That is OCEAN, ocean. Okay. The next is we see the blue sky far above the. We see the blue sky far above the. A is earth, B is sun, and C is stars. We see the blue sky far above the. Far मतलब बहुत दूर, and above means ऊपर. तो हमें जो ब्लू स्काई दिखाई पड़ता है ऊपर, उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो किसके ऊपर हमें दिखता है? अर्थ, सन या स्टार्स? Sun and stars are already there in the sky. Sun और stars तो sky में मिलते हैं. So the correct option is earth. We see the blue sky far above the earth. We live on planet earth. और जब हम नीचे खड़े होकर के ऊपर ऐसे करके ऊपर देखते हैं तो हमें ऊपर क्या दिखाई पड़ता है? We see the sky. ब्लू रहता है ड्यूरिंग मानसून. कभी कभी जब बारिश का टाइम होता है तो ग्रे भी रहता है. So we see the blue sky far above the earth. And third is dash cause rain. A, day, B, clouds, and C, night. Dash cause rain. What cause rain? बारिश किसकी वजह से होती है? The clouds. Clouds cause rain. कैसे? ये मैंने बताया था कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो ओशन है, लेक है, सी है, जो भी वाटर बॉडीज, उस पे सन ऊपर होता है, वाटर बॉडीज तो जमीन पे है। तो जब सन की रेस पड़ती है, हीट जो होती है, गर्मी, गर्मी से क्या होता है? पानी इवेपोरेट करता है। कभी भी आप जैसे गैस पे जब हीट पे पानी को रखते हो
तो पानी को रखा हमने हीट पे, फिर जब उसमें हीट लगनी शुरू होती है तो धीरे धीरे आप कभी आप अगर देखोगे तो उसमें यू विल सी दैट देयर स्मॉल बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, छोटे छोटे उसमें बबल्स बनने शुरू होते हैं पानी में। ठीक है, दैट मीन्स पानी अभी गर्म होना शुरू हो गया, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसमें और बबल्स बनने लग जाते हैं। और जब पानी एकदम बॉईल होने लग जाता है, दैट मीन्स जब पानी एकदम बॉइलिंग वाले टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो उसमें देखोगे ना बबल्स होते हैं। और अगर उसको ऊपर देखते धुआं निकलता है, धुआं दिखाई पड़ता है ना, अगर इफ यू कवर इट विथ अ लिड तो क्या होता है, लिड के अंदर पूरे पानी की ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाती हैं। और अगर वो खुला हुआ है तो क्या होता है, पानी में से आपको धुआं दिखाई पड़ेगा, यू कैन सी द स्मोक, वो उड़ता जाता है ऊपर। एंड इफ यू लीव वाटर ऑन हीट, अगर गैस के ऊपर आप पानी को छोड़ दोगे तो वो बॉईल होते 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 पानी कम होते जाएगा एंड वो पूरा पानी जो है पूरा इवेपोरेट कर जाएगा, पूरा उड़ जाएगा पानी। ठीक है, तो वो जो इवेपोरेशन होता है, जो पानी ऊपर जाता है, तो ये तो मैं घर के अंदर बता रही हूँ। तो जो वाटर बॉडीज होती है उस पर भी जब हीट पड़ती है तो पानी ऐसे इवेपोरेट होता है। जैसे देखा है ना, समर्स में जो रिवर्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स हैं, सब में पानी कम हो जाता है, पानी सूख जाता है, वाटर ड्राइज अप। व्हाई? बिकॉज ऑफ सन्स हीट। सन की हीट से गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि पानी सूख जाता है, क्योंकि बहुत तेजी से पानी इवेपोरेट करता है। तो ये जो पानी इवेपोरेट होता है वो ऊपर जाकर के वो क्लाउड्स बनते हैं। और जब बहुत ज्यादा, तो जो क्लाउड्स होते हैं दे आर यू कैन से कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की जो बूंदे होती हैं, जब बहुत ज्यादा बूंदे हो जाती हैं देन दे फिर वो बारिश के रूप में वो नीचे गिरती हैं। तो वही पानी फिर से वो नीचे आया, फिर से वो पानी जब बारिश होती है तो वो कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में जाता है। जो ओपन एरिया है, जमीन पे गिरता है तो सॉइल के अंदर जाता है, लेक में गिरेगा, रिवर में गिरेगा, जो भी वाटर बॉडीज है। तो दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वो पानी नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से बरस करके फिर वापस नीचे आ जाता है। तो जो क्लाउड्स होते हैं दे कॉज रेन इन दिस मैनर। ठीक है, अभी तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत शॉर्ट में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा बताने की कोशिश की है। ये सारी चीजें भी आप जब और जैसे जैसे मे बी 2, 3, 4 में जब जाओगे तो यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। ओके, सो क्लाउड्स कॉज रेन। नाउ नेक्स्ट इज put a tick against the right statement and cross against the wrong statement. Yeah, I hope everyone has done it. अगर किसी का छूटा हुआ है तो now I'm erasing this. EVS children, it is a very interesting subject. Of course, all the subjects are interesting, but EVS में science भी है, थोड़ा सा social studies भी है. It is a very interesting subject. Second is put a tick against the right statement and cross against the wrong statement. Okay, now first is the sun rises in the west. First and the second sentence is land covers most part of the earth. First is the sun rises in the west. Rise का मतलब है उगना. Sun rises in the west मतलब sun west में rise करता है. Is it true or false? The statement is false. So we will put a cross. Why false? Because we all know that the sun rises in the east
एंड एज आई हैव टोल्ड यू, राइज करने का मतलब ये नहीं है कि सन कहीं अंदर छिपा रहता है, सुबह निकल जाता है एंड देन अगेन इट गोज बैक इन द, मतलब वो कहीं नीचे चला जाता है शाम को। जैसे मैंने बताया है कि डे एंड नाइट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट अर्थ के सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो जो हमारी अर्थ भी सन के चारों तरफ घूमती है, उसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जब अर्थ हमारी सन के चारों तरफ घूमते घूमते, जब अर्थ का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो सबसे पहले सन के सामने आता है, दैट इज वाई वी से सनराइजेज इन द ईस्ट। जो अर्थ पे, जो हमारी जो कंट्री में, इंडिया में अर्थ पे, जैसे जहां जो इंडिया है, इंडिया में जो सबसे ईस्टर्न वाला स्टेट है, सबसे ईस्ट वाला, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में भी जितने स्टेट्स हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे ईस्ट में है। सो वो पार्ट सबसे पहले सन के सामने आता है एंड दैट इज वाई वी से सनराइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में अर्ली मॉर्निंग 4 बजे बिल्कुल लाइट हो जाती है, ब्राइट लाइट, वाइल इन रेस्ट ऑफ द कंट्री वो बिल्कुल उस समय अंधेरा रहता है। और फिर वैसे घूमते घूमते जब अर्थ सन के पीछे जाने लग जाती है, तो सबसे पहले सन अरुणाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है, तो सबसे पहले भी वही सेम पार्ट जो है वो अर्थ के पीछे जाता है। तो बाय 4-4:30 इन द इवनिंग वहां पे एकदम डार्क हो जाता है, जबकि वेस्टर्न साइड में उस समय अभी भी बहुत लाइट रहती है। तो ऐसे ही घूमते घूमते जब अर्थ का जो इस साइड वाला, जो हमारी कंट्री का जो वेस्ट वाला पार्ट है, वो सबसे लास्ट में सन के पीछे से जाता है। जब वो पार्ट चला जाता है तो यहाँ पे डार्क हो जाता है। सो दैट इज वाई वी से सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। राइजेज एंड सेट का मतलब ये नहीं है कि सन सुबह निकल आता और शाम को अंदर चला जाता है। सन जहां है इट रिमेन्स एट द सेम प्लेस। वी सी द सन इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, और शाम को हमको वेस्ट में दिखाई पड़ता है। ओके, सो दैट इज वाई वी से दिस। सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। Land covers most part of the earth. This sentence is also wrong because water covers most part of the earth. Earth is covered with 70% of water. मतलब अगर ये 10 है, suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। जैसे 10 है तो 10 में से इतना पार्ट जो है वो वाटर है, ओनली दिस पार्ट इज अर्थ। ठीक है, ओनली दिस पार्ट इज अर्थ। तो अर्थ के हाफ से भी ज्यादा पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है। सो द लैंड कवर्स मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, सो वी विल पुट अ क्रॉस हियर। ठीक है, नाउ सी इज आंसर द फॉलोइंग। इसको अभी रब करते हैं, देन आई विल राइट सी। नाउ सी इज आंसर द फॉलोइंग। ANSWER, आंसर द फॉलोइंग। नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ। फर्स्ट इज name the covering of the earth। ठीक है, अर्थ की कवरिंग क्या है, मतलब अर्थ किस चीज से कवर्ड है। अभी जैसे अर्थ का जो सरफेस है दैट इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर। ठीक है, अर्थ का जो सरफेस है वो लैंड एंड वाटर से कवर्ड है। बट जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी जो सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो है, हमारा सरफेस वी स्टैंड ऑन अर्थ, लेकिन हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारे चारों तरफ का एरिया है, दैट इज नॉट कवर्ड विथ लैंड, दैट इज कवर्ड विथ एयर। जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा ना कि वी लिव ऑन दिस प्लैनेट, इट्स शेप इज लाइक इन ऑरेंज एंड इट इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर। ठीक है, सो नेम द कवरिंग ऑफ द अर्थ। The covering of the earth is layers of air. Covering का मतलब है जो उसके जो सराउंडिंग चारों तरफ अर्थ के सरफेस पे लैंड एंड वाटर है। ठीक है, जो उसकी कवरिंग है दैट इज नॉट लैंड एंड वाटर, इट इज नॉट कवर्ड विथ
लैंड एंड वाटर. अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. और हमारी जो चारों तरफ की जो कवरिंग है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, दैट इज layers of air. So name the covering of the earth. The covering of the earth is layers of air. एयर की भी अलग अलग लेयर्स होती है. अभी वो सब भी अगेन ईवीएस में जो वॉट एवर यू आर लर्निंग नाउ, आप अभी जो भी पढ़ रहे हो, सीनियर क्लासेस में जाके ये सारी चीजें आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे. अभी लेयर्स ऑफ एयर, अभी बस इतना मालूम है कि अर्थ जो है वो उसकी कवरिंग क्या है, लेयर्स ऑफ एयर. कौन कौन सी लेयर्स है, उन लेयर्स का नाम, लेयर्स मतलब सतह है, ठीक है. तो अभी हर एक लेयर का क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं, ये आप जब और आगे क्लासेस में जाओगे तब उसको और डिटेल में पढ़ोगे. जो भी आप अभी पढ़ रहे हो ये सारी चीजें आप आगे के क्लासेस में भी ये सारी चीजें पढ़ोगे, बट उसी को आप और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है. सो द कवरिंग ऑफ द अर्थ इज लेयर्स ऑफ एयर. सेकेंड इज नेम 3 अर्थ फॉर्म्स. ठीक है, 3 अर्थ फॉर्म्स के नाम लिखने आपको, ठीक है. तो लैंड टाइप्स हमने पढ़ा था. अर्थ फॉर्म मतलब अर्थ के, जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं अर्थ के प्रकार, ठीक है. तो हमने लैंड टाइप्स पढ़ा, दैट इज लैंड फॉर्म ओनली. तो लैंड फॉर्म में हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लेन, हिल्स, माउंटेन्स. कहीं पे लैंड प्लेन हो सकती है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं डेजर्ट है, ठीक है. अभी और भी तरह के लैंड फॉर्म्स होते हैं, अगेन बाकी आगे क्लासेस में जाके पढ़ोगे. तो लैंड फॉर्म्स में वी कैन राइट हिल्स, माउंटेन्स एंड प्लेन्स. 3 लैंड फॉर्म्स वी कैन राइट. So name 3 earth forms. 3 earth forms are plains, hills and mountains. Like we say, हम कहाँ रहते हैं, वेयर डू वी लिव, वी लिव ऑन प्लेन्स. क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहां का अर्थ फॉर्म जो है दैट इज प्लेन, ठीक है. जो पीपल हु लिव इन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, तो वो क्या बोलते हैं, हम कहाँ रहते हैं, उत्तराखंड में, जैसे जो इधर नैनीताल है, मसूरी वगैरह में जो लोग रहते हैं. सो वेयर डू दे लिव इन माउंटेन्स. वो पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है. उनके घर कहाँ पे, पहाड़ों में है. हमारे घर कहाँ है, वी लिव ऑन प्लेन्स. क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ का अर्थ फॉर्म इज प्लेन्स. जो पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ का अर्थ फॉर्म क्या है, दैट इज माउंटेन्स. ओके, हम बोलते हैं दैट इज अ हिली एरिया, मतलब वो बहुत थोड़ा पहाड़ों वाला एरिया है. नॉट नेसेसरीली कि बहुत ऊंचे ऊंचे ही पहाड़ हर जगह होंगे. हिली मतलब जो लैंड फॉर्म जहाँ पे ऊंचा होता है, हिल है, ऊंचे ऊंचे पत्थर होते हैं, उबड़ खाबड़ जो एरिया है दैट इज हिली एरिया. एंड थर्ड क्वेश्चन इज why can we not see stars during the day? Question number 3 is why can we not see the stars during the day? Question is why can we not see the stars during the day? मतलब दिन के टाइम पे हमको स्टार्स क्यों नहीं दिखाई पड़ते. सो आई एम श्योर यू ऑल नो कि दिन के टाइम पे हमें स्टार्स नहीं दिखाई पड़ते बिकॉज ऑफ द ब्राइट सन. सन की लाइट दिन में इतनी ब्राइट होती है दैट एवरीथिंग एल्स इज हिडन. स्काई में तो मून है, स्टार्स है, ये वी कैन सी ओनली मून्स एंड स्टार्स. जो हमें स्काई में जो मून और स्टार्स है हमें सिर्फ वही दिखाई पड़ता है. अदरवाइज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स.
but they are not visible to us. But moons and stars, they are not visible to us during the day because of the bright sun. Sun की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि हम दिन में कुछ और फिर देख ही नहीं पाते. We cannot see the stars during the day due to BRIGHT bright sun. ड्यू टू का मतलब होता है उसके कारण. ठीक है, ड्यू टू द ब्राइट सन. We cannot see the stars during the day due to bright sun. हम दिन में स्टार्स को नहीं देख सकते ब्राइट सन के कारण. ड्यू टू का मतलब होता है कारण. तो हम स्टार्स को दिन में नहीं देख सकते हैं क्योंकि दिन में बहुत तेज सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है. ओके, so these are the question answers, and after this children, HOTS question answers are there. HOTS, that is higher order thinking skill, which we do in every lesson. So before doing the written work, पहले इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे, orally डिस्कस करेंगे पहले. ओके, write 2 steps to protect earth. While teaching also, जैसे मैंने बताया था कि अर्थ को हम मदर अर्थ कहते हैं. Why do we call earth as mother earth? जैसे मम्मी होती है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट मम्मी पूरी करती है. आपको भूख लग रही है, खाना मम्मी खाना बनाती है तुम्हारे लिए. मम्मी आपको स्कूल जाने के लिए तैयार करती हैं. मम्मी आपके होमवर्क में हेल्प करती हैं. और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो सबसे पहले आप मम्मी के पास भागते हो. पापा तो बहुत बार घर पे नहीं होते हैं, ऑफिस गए हुए होते हैं या कहीं बाहर पोस्टेड होते हैं, तो सबसे पहले मम्मी के पास भागते हो. तो अर्थ भी जो है, अर्थ केयर्स फॉर अस इन सो मेनी वेज. हमको खाने की जितनी भी चीजें हैं, हमारा सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल हमारा पॉसिबल है बिकॉज ऑफ अर्थ ओनली. हमको जो भी खाने की चीजें मिलती हैं, वॉट एवर वी ईट, वॉट एवर वी वेयर, हमारी खाने के अलावा भी और हमारी जितनी जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, दे आर ऑल फुलफिल्ड बाय अर्थ ओनली. अर्थ पे जो भी हम चीजें यूज करते हैं, चाहे व्हीकल हो, जितनी बिल्डिंग्स हैं, जो भी व्हीकल्स चलती हैं, जितनी भी चीजें बनती हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, मशीन है, सब अर्थ पे है. तो हमको जो खाने की चीजें मिलती हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं, व्हीकल्स यूज करते हैं, सब हमें अर्थ से मिलती है, या अर्थ पे जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनसे मिलती है. ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल्स से मिलते हैं. दे ऑल्सो लिव ऑन अर्थ. जितने हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, विच इज द मेन थिंग. हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. प्लांट्स कहाँ पे है? प्लांट्स आर ऑल्सो ऑन अर्थ. ठीक है, तो इट गिव्स अस सो मेनी थिंग्स एंड इट केयर्स फॉर अस इन सो मेनी वेज. So that is why it is called Mother Earth. So when we get so many things from Earth, it is our duty to take care of the Earth. तो हमको you have to write 2 steps. मतलब आप कौन से 2 steps फॉलो कर सकते हो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 steps आप कौन कौन से फॉलो कर सकते हो. सो वेरी कॉमन 2 steps आर, जैसे एक तो है स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. ऐसा नहीं है पानी अनलिमिटेड है. पानी की भी सप्लाई लिमिटेड होती है. ठीक है, पानी अगर जिस तरह से पानी अगर वेस्ट करते रहेंगे तो देयर मे बी अ डे, ऐसा हो सकता है कि एक दिन कभी बहुत साल बाद कभी ऐसा टाइम आएगा कि पीने के लिए पानी नहीं बचेगा. 70% ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ वाटर, बट दैट इज नॉट, उसमें से जो सी और ओशन का पानी है दैट इज नॉट यूजेबल. वो हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज या किसी और पर्पज के लिए यूज कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो जो पानी, जो रेन वाटर वगैरह जो कलेक्ट करते हैं रिजर्वॉयर्स में, डैम्स में, पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है. तो एक स्टेप तो ये हो सकता है कि स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, एंड सेकेंड स्टेप में भी स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, डोंट कट ट्रीज एंड प्लांट मोर ट्रीज. ओके, देन राइट 2 ways टू प्रोटेक्ट आवर वाटर बॉडीज. मतलब हमारी जो वाटर बॉडीज है उनको प्रोटेक्ट करने के 2 तरीके. तो एक तो ये है अगेन वाटर बॉडीज के लिए कि उसमें वाटर बॉडीज को क्लीन रखना जरूरी है. तो डोंट थ्रो गार्बेज. वाटर बॉडीज में गार्बेज मत फेंको.
और देन अगेन वाटर बॉडीज को हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है. तो अगेन स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर, डोंट वेस्ट वाटर. जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रश करने के टाइम पे, शेव करने के टाइम पे, हैंड वॉश करने के टाइम पे टैप ओपन छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है. डोंट डू इट. व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ या कोई भी काम कर रहे हैं, कीप द टैप क्लोज. जब जरूरत हो तब उसको खोल लो. सो 2 ways to protect water body is again, don't throw garbage, उसको गंदा मत करो, and stop wastage of water. And how can we protect our earth? Again, don't cut trees, plant more and more trees, and stop wastage of water, because every drop of water is very very precious. इसको कहते हैं हिंदी में, पानी की एक एक बूंद बहुत जरूरी है. ठीक है. So children, hot question answer we will do इसका written part जो है we will do it tomorrow, and then life skill also we will do it tomorrow. Okay, so today I will stop here only. Thank you so much.